سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ آف میجرز کو بیسک پے میں مرج کیا جائے، یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا۔ 9,502 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان۔ ایڈ ہاک الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کر دیا گیا۔ پینشن میں 5% اضافہ، 10% اضافہ پہلے ہی وزیر اعظم کر چکے۔ ماہانہ 1 لاکھ تک تنخواہوں پر ٹیکس معاف۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 6 سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے سالانہ کر دی گئی۔ کابینہ اور سرکاری افسران کا پیٹرول الاؤنس 40% کم کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 9,502 ارب روپے ہے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 550 ارب روپے ہوں گے۔ اگلے سال ایف بی آر کے ریونیوز کا تخمینہ 7,004 ارب روپے ہے۔ نان ٹیکس ریونیو میں 2,000 ارب روپے ہوں گے۔ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں 3144 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 808 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 550 ارب روپے مختص۔ ریونیو کا ہدف 7,000 ارب روپے ہوگا۔ بجٹ خسارہ 4,598 ارب۔ 3,144 ارب روپے قرض پر سود کی مد میں ادا کیے جائیں گے۔ مہنگائی کا تخمینہ 11.5% لگایا گیا۔ جی ڈی پی کو 67 کھرب سے بڑھا کر 78 کھرب تک لے جانے کا عزم۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ پیش کر دیا۔ ملک کی دفاع کے لیے 1,523 ارب روپے۔ دفاع پر 1,523 ارب خرچ ہوں گے۔ معیشت کے استحکام کے لیے مسلح افواج کا بڑا فیصلہ، اخراجات کم کر دیے۔ افواج پاکستان نے بجٹ کی مد میں کوئی اضافی فنڈ نہیں مانگا۔ جمعے کو سوائے ایمرجنسی کے تمام فوجی ٹرانسپورٹ بند رکھنے کا اعلان۔ بڑی تربیتی مشقوں کے لیے دور جانے پر پابندی، قریب انعقاد کیا جائے۔ امیر طبقہ حکومت کے نشانے پر اضافی ٹیکس لگیں گے۔ بڑی گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی۔ 1600 سی سی گاڑیوں کی خریداری پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ الیکٹرک گاڑیوں پر 2% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 2.5 کروڑ سے زیادہ مالیت کی پراپرٹی پر 1% ٹیکس عائد ہوگا۔ 2.5 کروڑ روپے کے 2 گھر رکھنے والوں پر نیا ٹیکس لگے گا۔ درآمدی موبائل فونز مہنگے، ٹیکس دینا پڑے گا۔ چھوٹے ریٹیلرز پر 3,000 سے 10,000 تک فکس ٹیکس لاگو ہوگا۔ مقامی سگریٹ پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز۔ بینکوں پر ٹیکس 39 سے 42% کرنے کی سفارش۔ ٹیلی کمیونیکیشن خدمات پر ایکسائز ڈیوٹی 16 سے 19.5% کرنے کی تجویز۔ بڑے بڑے فارم ہاؤسز پر ٹیکس لگے گا۔ کلب، بزنس، فرسٹ کلاس اور انٹرنیشنل ایئر ٹکٹس پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز۔ سونے اور چاندی کی مقامی فروخت پر 3% فکس ٹیکس ختم۔ کاغذ انڈسٹری کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی کے لیے 12 ارب روپے مختص۔ رمضان کے لیے الگ سے خصوصی پیکج دیا جائے گا۔ مختلف اشیاء پر مجموعی طور پر 1,515 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی پر 699 ارب رکھے گئے ہیں۔ ملک بھر میں طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے۔ ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ بجٹ میں 65 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے۔ 44 ارب روپے HEC کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 2022-23 کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ 10,000 مزید طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیے جائیں گے۔ ملک بھر میں طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر دیے جائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 65 ارب رکھنے کی تجویز۔ HEC کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 44 ارب مختص۔ بے نظیر تعلیمی وظائف کے لیے 9 ارب روپے مختص۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 250 ارب سے بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی۔ صحت کے شعبے کے لیے 24 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ بیت المال میں غریبوں کے علاج کے لیے 6 ارب روپے مختص۔ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت 20 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی۔
नौजवानों को 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जे की स्कीम मुतारिफ। ख्वातीन का कोटा 25% होगा। मुल्क भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स के जरिए नौकरियों से मुताल्लिक रहनुमाई दी जाएगी। 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाए जाएंगे। 11 से 25 साल के नौजवानों के लिए टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा। बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल के लिए 100 अरब रखने की तजवीज़। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपए खर्च होंगे। शाहराहों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए मुख्तस। रेलवे के 4 मंसूबे के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़रूरी मशीनरी और आला क्वालिटी के बीजों की दरामद पर टैक्स मुकम्मल खत्म। सोलर पैनल्स की दरामद पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। आबपाशी और बीजों में जिद्दत लाने के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस। फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब मुख्तस। फिल्म को सन्नत का दर्जा मिल गया। फिल्म बनाने वालों को 5 साल तक टैक्स छूट दी जा रही है। फिल्में बनाने के लिए आलात की दरामद पर टैक्स खत्म कर दिया गया। 10 साल के लिए प्रोड्यूसर्स की आमदन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 अरब रुपए सालाना फिल्म फाइनेंस फंड्स कायम किया जाएगा। फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। साबिक दौर हुकूमत में 60 लाख अफराद बेरोजगार हुए। 2 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। पीटीआई हुकूमत पाकिस्तान के कुल कर्ज का 80% लिया। रुपए की बेकदरी से महंगाई बढ़ी। मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई। हमने मुआशी तरक्की की बुनियाद रख दी है। तरक्की का फार्मूला बरामदात बढ़ाना है। हुकूमत के पास वक्त कम, सख्त फैसलों के लिए तैयार है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का असम्बली में खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए मोहम्मद खान जमाली ने पार्टी से बगावत कर दी। बजट इजलास के दौरान असेंबली पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खड़े होकर अरकान असेंबली ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। मोहम्मद खान जमाली का ताल्लुक NA 246 जाफराबाद से है। शोर शराबा हुआ, कापियां फाड़ी गई, ना ही स्पीकर डाइस का घेराव हुआ। 20 साल में पहली बार बजट इजलास पुरअमन रहा। असेंबली में नारे लगे, ना ही अपोजिशन ने कोई हंगामा किया। कौमी असेंबली के बाद बजट सेनेट में भी पेश। पीटीआई अरकान का शोर शराबा, बजट नामंजूर के नारे। बजट के जरिए कमजोर तबके पर कम दबाव डाला गया। सरकारी मुलाजिमीन का एड हॉक अलाउंस जम करने का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, हमारा मकसद कमजोर शहरियों को मुश्किलात से बचाना है। साबिक हुकूमत की मुआशी बदइंतजामी से मुश्किल वक्त आया। सख्त फैसले लेकर चैलेंजेस से निकलने का रास्ता निकालेंगे। इस तरह ये बजट एक तरफ माशी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को ले जाने का विजन होगा, दूसरी तरफ गरीब को रिलीफ देने का बजट होगा। वो आवाम दोस्त बजट है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, मुआशी बदहाली IMF की शराइत के बावजूद आवाम दोस्त बजट दिया। मौजूदा बजट मुल्क को इस्तेहकाम की जानिब ले जाएगा। नौजवानों की बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। वो वक्त ख़त्म जब मुलाजमीन सड़कों पर और वज़ीर आज़म सो रहा होता था। वज़ीर इत्तलात के ऐलान पर एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत के हक़ में नारे लगाने शुरू कर दिए। हुकूमत के आवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। इमरान खान का रद्द-ए-अमल, ये एक गैर तसव्वुराती पुराना पाकिस्तान बजट है। अफरात ज़र और शरह नमू गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। महंगाई की शरह 25 से 30% के दरमियान है। PTI सरबराह का दावा। असद उमर और हमाद अजहर ने भी बजट को हक़ाइक़ के खिलाफ करार दिया। बजट पर सनतकारों का मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार बेशतर ने बेहतर करार दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अदरीस मेमन का कहना है, हुकूमत को जो तजवीज़ दी उन्हें शामिल किया गया। लाहौर चैम्बर के अहदेदारों ने कहा, बजट से जितने रिलीफ की उम्मीद थी वैसे नहीं हो सका। बजट मुतवाज़िन है। रावलपिंडी की ताजर तंजीमों के अहदेदारों का मौक़िफ़।
एक हफ्ते में महंगाई में 2.67% बड़ा इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 24% के करीब पहुंच गई। आलू 3, टमाटर 4 रुपए फी किलो महंगे हुए। घी 28, कुकिंग ऑयल की कीमत में 37 रुपए किलो इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। 5 अशिया सस्ती, 13 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। डॉक्टर आमिर लियाकत सफर आखिरत पर रवाना, रब की बारगाह में पेश। नमाज जनाजा बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई। सियासी समाजी रहनुमाओं और मद्दाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में वालिद और वालिदा के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजिम मलिक मकसूद की लाश लाहौर पहुंचा दी गई। मलिक मकसूद की मैयत निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से रात 9 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाई गई। मलिक मकसूद की नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। लाहौर में CIA कहना पुलिस अगवा की वारदात में मुलव्विस निकली। ASI ने 4 साथी अहलकारों की मदद से दुबई पलट शहरी को 5 लाख ताबून की खातिर अगवा कर लिया। पुलिस ने 2 लाख रुपए तावान लेकर शहरी को छोड़ा। ग्रीन टाउन पुलिस ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरावाला में बैंक कैश वैन का ड्राइवर 16.5 करोड़ लेकर फरार। गार्ड्स बैंक स्क्वायर में निजी बैंक से रकम लेने गए तो वापसी पर ड्राइवर कैश वैन लेकर भाग गया। फोरेंसिक टीम की मदद से ड्राइवर की तलाश जारी। भारतीय रहनुमाओं की तौहीन रिसालत, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता कर लिया। वज़ीर ख़ारिजा का जनरल असम्बली के सदर से राब्ता। तौहीन अमेज गुफ्तगू और इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अरकान पार्लियामेंट सराप एहतजाज। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मार्च। हुकूमती और अपोजिशन अरकान सेनेट की शिरकत। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा।